हाय स्टूडेंट्स, क्यू कार्ड का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वेस्टेड योर टाइम। सो ऐसे कोई समय के बारे में बात कीजिए जब आपने आपका वक्त बर्बाद किया था। वेयर वर यू, व्हेन वाज इट, हाउ यू वेस्टेड योर टाइम एंड एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप तब कहाँ थे और आपने कैसे समय बर्बाद किया और ऐसा कब हुआ था, एंड आपको क्यों लगता है कि ये समय या वक्त की बर्बादगी है। अब आपको क्या लगता है, ज़्यादातर लोग जब उनको ये क्यू कार्ड पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? लॉकडाउन के बारे में बोलेंगे, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और जो फुल फ्लेजेड लॉकडाउन जब चल रहा था तब ज़्यादातर लोगों ने टाइम वेस्ट किया है। सो द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू योर माइंड इज द लॉकडाउन, दैट आई वेस्टेड माई टाइम इन लॉकडाउन। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉकडाउन के बारे में बोलेंगे, हमें ये नहीं बोलना है। यू हैव टू टॉक समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू टॉक समथिंग यूनिक। सो हम बोलने वाले हैं ऐसा कुछ एज इफ हमारी एग्जाम थी और हमने एग्जाम से आगे आगे टाइम वेस्ट किया। सो जो 1 मिनट का थिंकिंग टाइम है उसमें हम पेपर पे क्या लिखेंगे ये देखेंगे। सो हम लिखेंगे दैट आई वेस्टेड टाइम व्हेन आई वाज इन माय विलेज लास्ट ईयर। कैसे अपना टाइम वेस्ट किया? रेस्ट, स्पेंड टाइम विद ग्रैंड पेरेंट्स, रोम्ड अराउंड, स्टार गेजिंग। आई कुड हैव यूटिलाइज्ड द टाइम टू स्कोर बेटर। अब देखेंगे कि स्टूडेंट बन के हम इसको एग्जाम में कैसे बोलेंगे। It is fun to waste time, and especially if you are a student and you have no financial responsibilities, because once you grow up there is a guilt associated with the wasting of time. I know of many such episodes where I must have wasted my time. However, today I will discuss about a very recent incidents in my life. Last year during summers I had been to my village to live with my grandparents. Why I went there? Because my exams were approaching and I really wanted to focus on my studies. I was unable to concentrate on my studies because I was getting distracted with friends and television. So I decided to go there by myself. As soon as I reached my village, I received a call from my mom that my exams were postponed by a month due to heavy rainfall in my city. Initially, after hearing this news, I was very upset and agitated because I had made up my mind to work hard and score well in my exams. But then later I thought that I will rest for a day and continue my studies according to my plan. However, as days passed by, I started getting up late and I started spending the rest of the day chatting with my grandparents. I was becoming lazier and I was procrastinating. I spent the day into the fields and I roamed around in the farms. I also remember stargazing at night because village sky is really beautiful and clear in the night. I even realized that what I was doing was incorrect. In the back of my mind, I was knowing that I was wasting time. However, the postponement and the amount of time that I had kept me away from my studies. One fine day, as they say, time and tide wait for none. So the amount of time remaining and the amount of syllabus remaining was the same as it was before the postponement announcement of the exam. And now I was nervous and jittery because I realized that I had a lot to study and I had wasted time. Why I felt that it was a time waste? Because I could have utilized this particular time in reading with ease and scoring even better for my exams. I did not get the chance to read that well, and my exams did not go that well as expected, and I didn't score well. However, although I did not score well in my exams and I lost the time, I did not lose the lesson. I learned that we should not waste time, and I started planning my days, my weeks and my months. And in my next exam, I really read according to the time people. I did not miss the moments which were important ones. So I believe that this particular incident where I wasted my time left me with an experience. It left me with a lesson to not waste time and become serious about my studies. अब इस क्यू कार्ड को लिखा हुआ समझेंगे और फिर उसके बाद इस क्यू कार्ड से जुड़े हुए कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए अब क्यू कार्ड को समझेंगे। It is fun to waste time, especially if you are a student and you have no financial responsibilities. Once you grow up, there is a guilt associated with wasting time. समय बर्बाद करने में मज़े हैं,
खास करके जब आप विद्यार्थी हैं और आपके ऊपर कोई आर्थिक रूप से जिम्मेदारियां ना हो। एक बार जब हम बड़े हो जाते हैं तो टाइम वेस्ट के साथ साथ एक गिल्ट फीलिंग भी होती है। I know many such incidences in my life where I must have wasted my time. However, I will discuss about a recent episode. मुझे मेरे जीवन में से ऐसे कई किस्से याद हैं जब मैंने अपना समय बर्बाद किया था, लेकिन आज मैं एक recent incident या episode के बारे में बताऊंगी। Last year, during the summer seasons, I had been to my village to live with my grandparents. The reason why I went there was that my examinations were approaching and I wanted to focus on it. पिछले साल मैं समर सीजन में अपने गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ रहने गई थी। मेरी उधर जाने की वजह थी कि मेरे एग्जाम्स आ रहे थे और मुझे पढ़ाई पे फोकस करना था। It was not possible for me to concentrate on my studies as I was distracted with TV and friends. टीवी और दोस्तों से मुझे प्रलोभन होता था और मैं अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी। I decided to go there myself. मैंने खुद ही वहां जाने का निर्णय लिया था। As soon as I reached there, I received a call from my mother that my examinations were postponed by a month due to heavy rainfall in my city. जैसे ही मैं वहां पे पहुंची, मुझे मेरी माँ का फोन आया कि मेरी एग्जाम्स 1 महीना पोस्टपोन हो गई है क्योंकि मेरे शहर में बहुत ही भारी बारिश हुई थी। At first, I was very upset and agitated with this news. पहले मैं बहुत दुखी हो गई और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया because I had made up my mind to study. Then I thought that I will rest for a day and continue with my plan and work harder so that I can score better. मैंने पढ़ाई करने का निर्णय लिया था, इसलिए मुझे दुख हुआ। फिर मुझे लगा कि एक दिन का आराम करके मेरी योजना के मुताबिक मैं ज़्यादा मेहनत करूंगी ताकि मैं अच्छे मार्क्स या बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकूं। As days passed, I started getting up late and spent the day time chatting with my grandparents. जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने देरी से उठना चालू किया और दिन के समय में मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गप्पे लड़ाती थी। I started becoming lazier and procrastinating. मैं दिन ब दिन आलसी होती गई और समय बर्बाद करती गई। Procrastinating का मतलब है समय बर्बाद करना, काम को पीछे ठहराना। I roamed in the fields and visited the farms. मैं अलग अलग खेत में गई और बहुत सारे फील्ड्स में मैं घूमती थी। I stargazed at night as the village sky is beautiful and clear during summers. मैं रात को तारे देखती थी क्योंकि गांव में जो स्काई होता है, जो आकाश होता है, वो बहुत ही खुला और सुंदर होता है, खास करके समर सीजन में। I did everything except studying. मैंने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया। I even realized that what I was doing was incorrect, but the very thought that I had more time kept me away from becoming serious about my exam. मैंने realize किया था कि मैं जो कर रही थी वो गलत था, मैं समय बर्बाद कर रही थी, लेकिन मेरे पास अब पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय है, ये विचार से मैं एग्ज़ाम के लिए सीरियस या गंभीर होने से दूर हो जाती थी। Days passed and time flew. दिन बीतते गए और समय उड़ता गया। As they say, time and tide wait for none. जैसे लोग कहते हैं, समय और दरिया की लहरें किसी के लिए रुकते नहीं। One fine day, I realized that I had the same amount of time left as the same amount of syllabus to be completed. Same like what it was before the announcement of the postponement of the exams. एक दिन मैंने realize किया कि मेरे पास पहले पोस्टपोनमेंट की जब अनाउंसमेंट हुई, उससे पहले जितना समय और सिलेबस बाकी था, उस दिन भी उतना ही बाकी था। I was nervous and jittery. अब मुझे डर लगने लगा। नर्वस और जिटरी का मीनिंग लगभग सेम है। जिटरी यानी डर के मारे कांपना। I was guilty that I lost the valuable time. मुझे गिल्टी फीलिंग हुआ कि मैंने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया। Why I felt that it was a waste of time? Because I missed the golden opportunity. I could have utilized the time well and could have read with ease. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने समय बर्बाद किया? क्योंकि मैंने एक सुवर्ण तक को मिस कर दिया। मैंने उस समय में पढ़ाई करके, शांति से पढ़ाई करके मैं अच्छे मार्क्स ला सकती थी। My exams did not go the way I expected
and I regretted the time lost which never came back. मैंने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था मेरी एग्जाम्स उतनी अच्छी नहीं गई और मुझे बहुत पछतावा हुआ क्योंकि अब वो समय वापस नहीं आने वाला. The only good thing was that this was a good lesson for me. सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई कि मुझे अच्छा लेसन मिला, मुझे अच्छा बोध मिला. After this experience, I never took my time lightly. इस अनुभव के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने समय को गंभीरता से नहीं लिया. I learned how to plan my days, weeks and months. मैंने अपने दिन, मेरे हफ्ते और मेरे महीनों की योजना बनाना चालू किया और सीखा. In the next exam, I read accordingly and to the timetable and I scored even better than earlier. उसके बाद के एग्जाम में मैंने उस प्रकार से पढ़ाई की, टाइम टेबल के प्रकार से, और पिछले एग्जाम से ज़्यादा मेरे मार्क्स आए. Although I wasted my time in those days, I did not waste the lesson it taught me. It was a useful and meaningful lesson for lifetime. भले ही मेरा समय बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा जो सीख थी मेरी वो बर्बाद नहीं हुई. वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीख थी जीवन भर के लिए. हमेशा तैयारी ज़्यादा करनी है क्योंकि हो सकता है कि बिकॉज ऑफ एग्जाम फियर हम थोड़ा डर जाएंगे और कुछ चीज़ें हम भूल जाएंगे. सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर 3 to 4 minutes टू अपीयर फॉर 2-minute क्यू कार्ड. चलिए अब फॉलो अप क्वेश्चंस देखते हैं. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम? आपके मुताबिक समय की क्या व्याख्या है? अकॉर्डिंग टू मी, टाइम इज अ वेरी वैल्यूएबल एसेट. It is more valuable than money because if we lose money, then we can earn it back. But if we lose time, it never comes back. So we should all value time. मेरे मुताबिक समय जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ महत्वपूर्ण संपत्ति है, कीमती संपत्ति है. वो पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संपत्ति है क्योंकि अगर हम पैसा घुमा देते हैं तो वापस कमा सकते हैं, लेकिन अगर समय चला जाता है, वक्त चला जाता है, तो वो कभी भी वापस नहीं आता. सो हम सबको समय की कीमत करनी चाहिए. डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैनेज टाइम? क्या आपको लगता है कि टाइम को मैनेज करना जरूरी है? यस, डेफिनेटली. बट इन माई ओपिनियन, नोबडी कैन मैनेज टाइम बिकॉज द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल टू ऑल इज द सेम, वेदर वी आर रिच और पुअर, यंग और ओल्ड, और वी हैव 24 hours. We all have 24 hours in a day. जी ज़रूर, मुझे लगता है कि समय को मैनेज करना चाहिए, लेकिन मेरे ओपिनियन से कोई समय को मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि समय जो है वो सबके लिए सेम है. अगर हम गरीब है या धनवान है, यंग है या ओल्ड है, हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं. सो आई थिंक दैट वी शुड एक्चुअली मैनेज आवरसेल्व्स इन द टाइम एंड नॉट मैनेज द टाइम. सो मुझे लगता है कि जो भी समय हमारे पास है उसमें हमें अपने आप को मैनेज करना है, समय को नहीं. हाउ कैन वी मैनेज टाइम वेल? हम समय को कैसे श्रेष्ठ रूप से मैनेज कर सकते हैं? देयर आर मेनी वेज टू मैनेज द टाइम वेल. द वेरी फर्स्ट वे इज टू प्लान एंड फॉलो इट. वी शुड मेक अ टू डू लिस्ट एंड ट्राई टू कंप्लीट इट. समय को मैनेज करने की बहुत सारी रीत है. सबसे पहला है योजना बनाना और फिर उसको फॉलो करना. हमें टू डू लिस्ट बनाना चाहिए और उसे खत्म करना हमारा प्रयत्न होना चाहिए. देन वी शुड फाइंड आउट द टाइम वेस्टिंग पीपल एंड एक्टिविटीज इन आवर लाइव्स एंड वी शुड अवॉइड देम. उसके बाद हमें जो लोग और जो प्रवृत्तियां हमारे जीवन में समय बर्बाद करते हैं उसे हमें ढूंढ निकालना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए. These days social media also takes up a lot of our time. So we should reduce it as much as possible. आजकल सोशल मीडिया भी हमारा बहुत सारा समय खा जाता है, इसीलिए हमें जितना हो सके सोशल मीडिया का उपयोग कम करना चाहिए. Prioritizing important and urgent tasks will be a good strategy to manage time. Important यानी महत्वपूर्ण और अर्जेंट आपातकालीन जो काम है उसको प्राथमिकता देना, यानी ये सब पहले करना, ये भी एक समय को मैनेज करने की अच्छी स्ट्रैटेजी है. डू यू थिंक मी टाइम इज इम्पॉर्टेंट? वाई? क्या आपको लगता है कि मी टाइम यानी जो समय आप खुद के लिए निकालते हो वो इम्पॉर्टेंट है? अगर हाँ तो क्यों? ऑफ कोर्स आई थिंक दैट मी टाइम इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो कंपल्सरी. जी हाँ,
मुझे लगता है कि मी टाइम सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, कंपल्सरी भी है। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मीट वन सेल्फ। ये खुद से मिलने की एक तक है, अपॉर्चुनिटी है। रिलैक्स एंड रिजुविनेट, रिलैक्स होने की और रिफ्रेश, रिजुविनेट यानी ताजगी महसूस करने की और आराम करने की भी एक अपॉर्चुनिटी है। ऑल ऑफ अस शुड स्पेंड एटलीस्ट 20 मिनट्स विद आवरसेल्व्स डेली। हर किसी को रोज अपने आप के साथ 20 मिनट बिताने चाहिए। इट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट अ प्रोडक्टिव डे। ये समय ऐसा करने से हमारा जो दिन है, दिन की शुरुआत बहुत प्रोडक्टिव होगी और दिन भी बहुत प्रोडक्टिव होगा। वी कैन डू इट बाय मेडिटेशन, राइटिंग अ जर्नल, प्रेइंग, एक्सरसाइजिंग और जस्ट बाय रीडिंग अ बुक और लिसनिंग टू आवर फेवरेट म्यूजिक। ये हम कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन करके, जर्नल लिख के, प्रार्थना करके, व्यायाम करके और या तो सिर्फ अपनी फेवरेट बुक या अपना फेवरेट म्यूजिक सुन के भी हम मी टाइम निकाल सकते हैं। इन योर ओपिनियन, डू वर्कोहॉलिक्स इन योर ओपिनियन आर वर्कोहॉलिक्स बैड मैनेजर्स ऑफ टाइम? आपके मुताबिक क्या वर्कोहॉलिक्स जो है वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत बुरे हैं? वर्कोहॉलिक्स यानी ऐसे इंसान जो एक अल्कोहलिक, पियक्कड़ की तरह काम करते रहते हैं, उनको और कोई कुछ सूझता ही नहीं है, वो पूरा दिन सिर्फ काम में मशगूल रहते हैं और इसी में उनको मजा आता है। यस, आई थिंक सो। एनीवन हु डज एनी वर्क एक्स्ट्रा एंड कॉन्स्टेंटली इज अ बैड टाइम मैनेजर। जी हाँ, मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत सारा सतत कांस्टेंट काम करता रहता है वो एक बैड टाइम मैनेजर है। आई मे बी रॉन्ग because there are certain professions where one has to forget everything and just work. For example, a soldier or a doctor. मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जहाँ पे इंसान को सब कुछ भूल के सिर्फ काम पे फोकस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोल्जर है या कोई डॉक्टर है। सो स्पेयरिंग सम प्रोफेशंस, आई अग्री दैट वर्कोहॉलिक्स आर बैड टाइम मैनेजर्स। सो कुछ व्यवसाय या कुछ प्रोफेशंस को छोड़ के मैं जरूर सहमत हूँ कि वर्कोहॉलिक्स जो है वो अच्छे टाइम मैनेजर्स नहीं है। शुड टाइम मैनेजमेंट बी टॉट इन स्कूल? क्या टाइम मैनेजमेंट को स्कूल में सिखाया जाना चाहिए? यस, टाइम मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल एंड टीचिंग दिस स्किल शुड बिगिन फ्रॉम स्कूल एज वेल एज होम। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है और इसे सिखाना सिर्फ स्कूल में ही नहीं, घर से शुरुआत होनी चाहिए। If this is taught and ingrained right from childhood, then many of us will be successful and more productive. अगर बचपन से ही टाइम मैनेजमेंट सिखाया गया तो बहुत सारे लोग सफल होंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। So yes, it should be a separate subject in school which will be a value addition to the curriculum. जी हाँ, ये स्कूल में एक सेपरेट विषय की तरह पढ़ाना चाहिए ताकि जो अभ्यासक्रम है उसमें एक वैल्यू एडिशन हो जाए। क्यू कार्ड से जुड़े क्वेश्चंस, कमेंट्स और फीडबैक को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।